Assalamu alaikum students. Hope you are all fine at your home and healthy and safe. So as we know that nowadays we are discussing about chapter number 9, which is organic compounds containing oxygen as a main functional group. So in the last class I have told you that 7 classes we have to study as far as oxygen as a main functional group is concerned. In this scenario we have to study alcohols, first member, then carboxylic acids, then phenols, 4 aldehydes, 5 ketones, ether and ester. ठीक है, तो today's lecture is all about alcohols and start. Alcohols are, as we know, that are the derivatives of alkane. Derivatives of alkane, their general formula is CnH2n plus 1, which is for alkyl radical, and main functional group is OH. Hydroxyl group is the main functional group, or we can represent general formula as ROH. R, as I told you, alkyl radical, and OH for main functional group. Over here there is a slide एक क्वेश्चन आपके ध्यान में आ रहा होगा कि this hydroxyl, this is OH group, and what is the difference or similarity between hydroxyl also present in alkalis or soluble bases or bases like sodium hydroxide, calcium hydroxide, potassium hydroxide, etc. So what is the difference between this hydroxyl and that hydroxyl? Actually that hydroxyl is partial negative and which is responsible for alkaline character of bases. Soluble bases are all alkalis and that hydroxyl is partially negative. This hydroxyl is totally neutral. Pause karna. So this is the difference. This hydroxyl group is totally neutral, replacing by one hydrogen from alkane replaced by this hydroxyl group. तो जो नेमिंग होती है अल्केन की, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन will be replaced by ol. Ol is the characteristic name of all alcohols, from methane to methanol, ethane to ethanol, propane to propanol. Clear? As far as classification is concerned, so on the basis of hydroxyl group present in the chain, alcohol may be monohydric, dihydric or trihydric. Monohydric alcohols are those alcohols only one hydroxyl group is present. In dihydric alcohol, 2 hydroxyl is present in the chain, and the trihydric alcohol 3 hydroxyl are present in the chain. ठीक हो गया? Similarly, monohydric alcohols are also classified as primary, secondary and tertiary alcohol depending how many alkyl radicals are attached with that carbon which is directly associated with functional group. So this carbon containing functional group having only one radical, this is ethyl radical, so it is considered as primary alcohol 1-node or its name is propanol or propyl alcohol 1-node. अगर हम पुरानी क्लासिफिकेशन पर जाएंगे तो it is primary propyl alcohol because it contains 3 carbon. Primary propyl alcohol 1-node and its standard name IUPAC name is propanol. Similarly, the central carbon, this carbon which is associated directly attached with this functional group having 2 radical. So this is secondary carbon. It is secondary propyl alcohol. It is primary propyl alcohol. It is secondary propyl alcohol, and this is tertiary butyl alcohol because this carbon having this functional group 3 more radical. Radical number 1, 2 and 3. So this is tertiary butyl alcohol. Clear? These are the alcohol are the most important derivative of alkane as far as synthetic industry or organic chemistry is concerned. Modern world में alcohol के बहुत ज़्यादा it is used as a solvent in many organic reactions. Used as solvent, they can be readily converted into aldehydes and carboxylic acid by oxidation. Look, they can be readily converted. अल्कोहल कन्वर्ट हो सकते हैं एल्डिहाइड्स में और कार्बोक्सिलिक एसिड में
by oxidation. By oxidation. You know that what is the difference between combustion and oxidation? In combustion we need molecular oxygen O2, but for oxidation we need atomic oxygen. We have to make it. In further discussion I will tell you what is the oxidation process. They can convert it into alkyl halides by SN mechanism. SN mechanism हम लास्ट चैप्टर में अच्छी तरीके से डिस्कस कर चुके हैं. तो दिस इज द बेसिक केमिस्ट्री ऑफ अल्कोहल. क्योंकि ड्यू टू पैंडेमिक आपका सिलेबस रिड्यूस्ड हो चुका है, हमें इस चैप्टर नंबर 9 में अल्कोहल्स पढ़ने हैं, मिथेनॉल पढ़ना है और इथेनॉल पढ़ना है. जस्ट वी हैव टू डिस्कस टू काइंड्स ऑफ अल्कोहल, मिथेनॉल एंड इथेनॉल. तो फर्स्ट ऑफ ऑल अकॉर्डिंग टू हम बुक के सीक्वेंस को फॉलो करेंगे. इंट्रोडक्शन के बाद आपको इसकी नॉमेनक्लेचर आनी चाहिए. तो राइट नाउ आपके सामने लाइव में अभी इसकी बुक की नॉमेनक्लेचर को सॉल्व करूंगा साथ साथ, और आपको इसके स्टेप्स भी सिखाऊंगा. ठीक है. नाउ नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल फ्रॉम द बुक. तो क्वेश्चन नंबर 1 है आउटलाइन द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग. तो पहला इसमें स्ट्रक्चर जो आपको बनाने को दिया जाएगा वो है इट इज सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल. तो द क्लासिक नेम इज गिवन. एग्जामिनर कह रहा है मेक द स्ट्रक्चर ऑफ सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल मेक द स्ट्रक्चर ऑफ सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल और फिर मैं उसकी आपको IUPAC नेमिंग भी बता दूंगा. तो सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा ब्यूटाइल. नेम ब्यूटाइल मींस 4 कार्बन इज देयर एंड ऑल ऑफ अस नो दैट सेकेंडरी ब्यूटाइल मींस दैट कार्बन which is directly attached with hydroxyl functional group having how many carbon? 4 कार्बन होने चाहिए. सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल का मतलब क्या होता है? उसके साथ 2 रेडिकल और हो. तो लोग सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल 1 2 ये कार्बन, इसके साथ हम लगा देंगे फंक्शनल ग्रुप OH. दिस इज द फर्स्ट रेडिकल, दिस इज द सेकेंड रेडिकल. अब two more carbon are there, CH2 CH3. so 3 radicals are there. This is the main carbon. Why this is main carbon? Because it contains functional group OH. And why it is secondary butyl? It is secondary butyl. Secondary butyl contains at least 2 more carbon. तो this is the first carbon, this is the second carbon. ये तो tertiary butyl बन गया भैया. पोज करो. तो this is the secondary butyl alcohol. This carbon having this main functional group, radical number 1 methyl, and this is ethyl. So having 2 R1 R2, तो it's become secondary butyl alcohol. और इसका IUPAC नेम क्या होना चाहिए? अब हम काउंटिंग वहां से शुरू करेंगे जहां पर फंक्शनल ग्रुप नियरेस्ट होगा. तो 1 2 3 रॉन्ग, 1 2 3 4. तो इट इज 1 2 3 4 2 ब्यूटेनॉल. इट इज 2 ब्यूटेनॉल और ब्यूटेन 2ऑल. ठीक हो गया. तो दिस इज सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल एज वेल एज 2 ब्यूटेनॉल और ब्यूटेन 2ऑल. ऑल नेमिंग्स आर करेक्ट. दिस इज क्लासिकल नेमिंग. दिस इज नेम्ड बाय IUPAC स्टैंडर्ड नेमिंग. द नेक्स्ट वन इज नियोपेंटाइल अल्कोहल. Neopentyl alcohol. Neopentyl, you must remember neo. The central carbon attached by 4 other carbon is called neo. तो देखो पेंटाइल 5 कार्बन होंगे, 2 कार्बन हो गए, 3 कार्बन, 4 कार्बन. This is neopentyl and this is alcohol. So this is the structure of neopentyl alcohol. Central carbon associated with 4 radical number 1, radical number 2, radical number 3, and this is CH2OH. 1 hydrogen has been left attached and hydroxyl is gained. So this is neopentyl alcohol. This is neopentyl alcohol. Its IUP name is 1 2 3 1 2 3. This is wrong naming. हमें यहाँ से शुरू करना पड़ेगा जहाँ से फंक्शनल ग्रुप नियरेस्ट होगा.
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, कहीं से 1 2 3, तो 2 कार्बन नंबर 2 कंटेनिंग 2 फंक्शनल ग्रुप, तो न्यू पेंटाइल अल्कोहल इज द क्लासिक नेम। तो 2 2 डाइमिथाइल ड्यू टू डाइमिथाइल प्रोपेनॉल, 1 प्रोपेनॉल, 1 प्रोपेनॉल, और सिंपली ये 2 2 डाइमिथाइल प्रोपेनॉल भी हो सकता है। ठीक है, द थर्ड वन इज 3 मिथाइल ब्यूटेनॉल, वेरी सिंपल, 3 मिथाइल ब्यूटेनॉल, 3 मिथाइल ब्यूटेनॉल। तो देखो टोटल कार्बन ब्यूटेनॉल 4, 1 2 3 4, 3 मिथाइल 1 2 3 या 1 2 3, यहां तक काउंट कर लें तो ज्यादा बेहतर है। 1 2 3, 3 के ऊपर मिथाइल ब्यूटेनॉल, यहां लगा दें ब्यूटेनॉल, हमने काउंट यहां तक करना है। तो दिस इज 3 मिथाइल ब्यूटेनॉल, CH2 CH2 CH और CH3, काउंट यहां तक करेंगे 1 2 3 4, दिस इज 3 मिथाइल ब्यूटेनॉल एंड द 4 आइजो ब्यूटाइल अल्कोहल, आइजो ब्यूटाइल अल्कोहल। आइजोब्यूटाइल कैसे बनेगा भाई, अब 4 कार्बन होंगे आइजोब्यूटाइल, आइजो का पता है ना, व्हेन द रेडिकल कम्स फ्रॉम सेकेंड कार्बन, तो दिस इज 1 2 3 आइजोब्यूटाइल अल्कोहल, दिस इज आइजोब्यूटाइल अल्कोहल, इट्स IUPAC नेम इज 1 2 3 1 2 1 2 3 2 methyl, its IUPAC name is 2 methyl 2 propanol, 2 methyl 2 propanol. Why it is 2 methyl? Methyl radical having on carbon number 2 with functional group, so 2 methyl 2 propanol, 1 2 3 या 1 2 3 ऐसे भी कर लें, 1 2 3 एक ही बात है, 2 methyl propanol 2 methyl। ठीक है भाई, द नेक्स्ट वन इज टर्चरी ब्यूटाइल अल्कोहल, टर्चरी ब्यूटाइल अल्कोहल। अब देखो टर्चरी ब्यूटाइल, द सेंट्रल कार्बन हैविंग 3 मोर कार्बन, CH3 CH3 CH3, दिस इज टर्चरी ब्यूटाइल एंड अल्कोहल, इट्स IUPAC नेम इज 1 2 3 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल, 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल, 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल। पोज करना, डस्टर देना। ओके, नाउ द सिक्स्थ वन, सिक्स्थ वन 3 इथाइल 3 मिथाइल 2 पेंटानॉल, 3 इथाइल 3 मिथाइल 3 इथाइल 3 मिथाइल 2 पेंटानॉल। ठीक है भाई, अब देखो पेंटानॉल मीन्स 5 कार्बन आप सीधे सीधे बना दें, यू हैव टू मेक 5 कार्बन, 1 2 3 4 5, यहां से आप ले लें 2 पेंटानॉल, तो 2 के ऊपर फंक्शनल ग्रुप है तो कार्बन नंबर 1 2 3 यही है, तो इधर ही मिथाइल है और इधर ही इथाइल है, C2H5। अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करते हैं, E comes first then M, नाउ सेटिस्फाइड द वैलेंसी 3 2, इसके साथ कोई हाइड्रोजन नहीं होगा, इसके साथ एक हाइड्रोजन होगा इसके साथ, नाउ इट इज 3 इथाइल 3 मिथाइल 2 पेंटानॉल। द नेक्स्ट वन 2 2 2 2 डाइमिथाइल 2 2 डाइमिथाइल 1 4 हेक्सेन डाइओल, 1 4 हेक्सेन डाइओल। डाइओल मीन्स 2 हाइड्रोक्साइल ग्रुप इज देयर, तो हेक्सेन को देखना पड़ेगा, 6 कार्बन बनाने, 1 2 3 4 5 6, 1 और 4 पर आप डायोल बनाएं, 1 के ऊपर हाइड्रोक्साइल और 1 2 3 4 के ऊपर हाइड्रोक्साइल,
नाउ 2 के ऊपर डाई मिथाइल है 2, तो CH3 एंड CH3 नाउ सेटिस्फाइड द वैलेंसीज। इसके साथ 2 हाइड्रोजन, नो हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन एंड, तो दिस इज ऑल अबाउट एज फार एज दिस बुक स्ट्रक्चर इज कंसर्न। अल्कोहल की नॉमेनक्लेचर ये थी। पोज करो। एक आइसोब्यूटाइल अल्कोहल में करेक्शन होनी है। ये आइसोब्यूटाइल अल्कोहल बनेगा इस तरह, CH3 CH2 CH, CH3 CH2 CH, CH3 और OH। दिस इज आइसोब्यूटाइल अल्कोहल 1 2 3 और चौथा कार्बन ये रहा। इट्स IUPAC नेम इज 1 2 3 4 1 2 3 4 आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। पोज करना यार। दिस इज आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, दिस इज आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। यस, इट इज वेरी राइट, इट इज वेरी राइट, इट इज आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। नहीं, मिस्टेक हो रही है, पोज करो यार। तो दिस इज द फाइनल स्ट्रक्चर। थोड़ा सा मेरा दिमाग घूम गया था, गजनी बन गया था। दिस इज द फाइनल स्ट्रक्चर ऑफ आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। देखो, दिस कार्बन इज हैविंग फंक्शनल ग्रुप, 2 रेडिकल आर देयर, रेडिकल नंबर 1 मिथाइल, रेडिकल नंबर 2 इथाइल, तो आइसोब्यूटाइल ब्यूटेनॉल अल्कोहल और इट्स IUPAC नेम इज 2 ब्यूटेनॉल। ठीक है भाई। तो दिस इज नॉमेनक्लेचर एज फार एज स्ट्रक्चर्स आर कंसर्न। यहाँ पर थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गया था, बस फाइनली आई हैव गॉट इट। अब हम इसके थोड़े से जर्नल रिएक्शन को देखेंगे। कितने मिनट की हो गई है? फर्स्ट ऑफ ऑल, जनरल प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। Journal preparation of alcohol, we can make alcohol by 2 techniques. One is you have already studied by fermentation, जिसमें हम स्टार्च को या ग्लूकोज को बैक्टीरियल कैटालिटिक जो एंजाइम के थ्रू हम उसको ख़राब करके फर्मेंटेड करते हैं। व्हाट हैपेंड, ठीक है। और दूसरी जो हम बनाते हैं, जो आपने पिछली क्लासेस में पढ़ी थी, बाय मीन्स ऑफ इथाइल अल्कोहल। अगर बनानी है तो आपके पास इथीन होना चाहिए। दिस इज इथीन रिएक्टेड विथ स्टीम, रिएक्टेड विथ स्टीम। दिस इज स्टीम। जब इथीन गैस को हम स्टीम से पास आउट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ फास्फोरिक एसिड एज ए कैटलिस्ट, हाई टेम्परेचर 300 डिग्री सेल्सियस और हाई टेम्परेचर 60 atm, तो इथीन कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल, इट इज कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ इथेनॉल। तो एक तरीका ये है और एक तरीका फर्मेंटेशन का है, तो वो हमारे सिलेबस में है नहीं, तो हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे। तो दिस इज इथीन reacting with steam, phosphoric acid catalyst, high temperature, high pressure, converted ethanol। ये जो इथेनॉल होगा ये एज ए सॉल्वेंट यूज होगा। वी कैन नॉट यूज दिस इथेनॉल एज ए बेवरेजेस। इसको हम अल्कोहल को विस्की में, बेयर में, शैम्पेन में, टेकीला वगैरह में यूज नहीं कर सकते, बिकॉज इट्स बिकम पॉइजनस टू द ह्यूमन हेल्थ, और ये अनफिट है बिल्कुल। ये सिर्फ यूज होगा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के तौर पर। जर्नल मैकेनिज्म क्या है, जर्नल रिएक्शन देख लेते हैं। ऑल अल्कोहल कैन बर्न, व्हेन अल्कोहल बर्न्स like other organic compound, they need molecular oxygen and they produce carbon dioxide plus water vapors। ठीक हो गया। इसको बैलेंस कर दें, 2 कार्बन इज देयर, 2 कार्बन इज देयर, 5 और 1 6 हाइड्रोजन, 3 to the 6 हाइड्रोजन, 2 to the 4 और 3 7 ऑक्सीजन, 1। दिस इज द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर बर्निंग ऑफ इथेनॉल। ठीक हो गया भाई। अब हम आगे आपको बताएंगे केमिस्ट्री ऑफ
मीथेनॉल एंड इथेनॉल इन अदर वीडियो इन अ डिटेल लेक्चर। ये इसका इंट्रो था, इसकी मैकेनिज्म थी, मेथड ऑफ प्रिपरेशन थे और इसकी बाकी बातें। थैंक यू सो वेरी मच। हाँ।